amid unprecedented heavy rainfall across Assam. Here in Guwahati, you can see here the national highway is blocked with water. This is a key national highway, key bypass, bypassing the Guwahati city, linking the upper Assam region to the lower Assam and to the rest of the country. Now, many parts of the national highway are also blocked, although only heavy vehicles are able to move, but smaller vehicles are unable to move. So, therefore, not only this national highway, but across Northeast, several roads, several national highways have faced landslides, blockades. So this is a very challenging situation. There is loss of life being reported from Arunachal Pradesh, where there are flash floods due to heavy rainfall. There is massive flash floods in Lakhimpur, in Upper Assam, in Guwahati itself. Although in the morning we did see there was a respite with the rains, not being there for a couple of hours. But now again the rain is back, and this is not a good news for Guwahati, where many of the residential areas are flooded. They are waterlogged. People don't have electricity and internet connections for over 24 hours. You have 5 people who have died in Guwahati in landslides in the foothill areas beyond these plain areas in Guwahati. There have been massive landslides. There you can see one small vehicle really trying to brave these flood waters and trying to reach, but it's almost turning turtles. It's not very easy to commute at this moment through the city. It is a very dangerous affair, one would say, and this is not the situation only of Guwahati, but in many parts of Assam. And what is also important to note is that it's not only in Assam. There have been massive landslides in Mizoram. There have been flash floods in Imphal. So therefore, overall Northeast is impacted by this fury of very extensive and very heavy rainfall. And since there have been red and orange alerts issued by the Met Department, so therefore not only the Assam government but even other governments in the Northeast are preparing for flash floods, given the fact that many of the dams and the reservoirs will be full and they have to release water. So in the low-lying areas, there will be flash floods in the days to come. So the preparations are being done even as the government is trying to reach out to the people. इस वक्त एनडीटीवी नेटवर्क में एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जयंत मल्ल बरुआ। मिस्टर बरुआ, पिछले 24 घंटों से आप गुवाहाटी के सड़कों में हैं आपके टीम के साथ। इतनी बारिश हुई है, एक बहुत ही प्रतिकूल सिचुएशन है। किस तरह से सरकार इससे निपट रही है और आगे के तैयारी क्या है? देखिए, लास्ट 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और गुवाहाटी सिटी में बारिश का पानी तो है, और दूसरा मेघालय का हिल का जो मेघालय गुवाहाटी सिटी का पास में मेघालय का जो पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी का पानी गुवाहाटी सिटी तक आ गया है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा फ्लड का प्रॉब्लम हुआ है। नेचुरली यहाँ बारिश है और मेघालय से जो पानी है, पूरा पहाड़ी का पानी जब यहाँ आ जाता है, पूरा एरिया फ्लडेड हो जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी गुवाहाटी सिटी का अंदर ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ बांध दे के रखा हूँ, स्विच गेट वगैरह बंद करके इस पानी को हम लोग पामोही होके दीपावली होके ब्रह्मपुत्र तक लाए जाने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ड्रेन का काम चल रहा है, बहुत नया ड्रेन हम लोग काम शुरू किया है, फटाफट काम कर रहा हूँ। और एक रास्ता से हम लोग खानापारा होके सिलसाको होके पानी निकलने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि मेघालय का पानी गुवाहाटी का अंदर ना आए। इस कोशिश में कुछ तो सफल हुआ हूँ। फिर भी गुवाहाटी सिटी एरिया में भी ऐसा बहुत जगह है जो ऐसा एक काप जैसा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, तो उसको पाम करके हम लोग निकाल रहा है। फिर भी जब बाहर पानी रहता है तब पाम करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जगह में ऑब्स्ट्रकल चाहिए, ऑब्स्ट्रकल भी हम तोड़ दिया हूँ। काम तो चल रहा है, पूरा डिपार्टमेंट दिन रात एक करके काम कर रहा है। लोगों का सहायता भी चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी का जो नेचुरल ड्रेनेज था, नेचुरल नदी था, नेचुरल जान था, जुड़ी था, ये सब धीरे धीरे ब्लॉक हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये एनक्रोचमेंट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया। ये सब तो प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग देखना पड़ेगा। बहुत सारा जगह ऐसा है जो बड़ा नदी था, उसको छोटा ड्रेन बन गया, अभी उसको थोड़ा बड़ा बनाना है। जैसे सूरीपार एरिया में ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा नदी था, उसको बनाते बनाते छोटा ड्रेन हो गया, उसका रोड हो गया। अभी रोड को काट के कैसे हम लोग रोड का ड्रेन बना सके, बड़ा ड्रेन बना सके, इसको सोचना पड़ेगा। सिल्टेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिल्क मेघालय का पहाड़ी से आता है, गुवाहाटी का पहाड़ी से इसके आ जाता है, तो सील का सफाई करने का काम होता है। वो भी काम हम लोग बहुत दिनों से तदारक कर रहा था। वो काम अच्छा से होने से बहुत जगह से पानी जल्दी निकल जाता है। और इस बार हम लोग डिसिल्टेशन का काम इतना प्लान वे में किया था, जिसका
जिसके लिए आप देखा जाए तो लैम्प रोड में अभी पानी नहीं है, जीएस रोड में पानी नहीं है, सिलपुखरी एरिया में पानी नहीं है, जू रोड में पानी कम है। तो कभी कभी ये जो डिसिल्टेशन का उसका अच्छा फल भी हमको मिला है। इसके साथ और एक चैलेंज रहेगा कि जो फुट हिल्स है गुवाहाटी के आसपास, वहाँ पे लैंडस्लाइड की बहुत घटना घटी है, लोगों की जान गई है, ये एक चैलेंज है आपके साथ में ब्रह्मपुत्र में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि दूसरी जगह में पानी बरसात हो रही है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र में भी पानी को पंप आउट करने में भी चैलेंज आएंगे। तो अगले जो 2 दिन है उसमें किस तरह से निपटने की तैयारी है? देखिए, ये तो चैलेंज है। लैंडस्लाइड का जो आप बोल रहे हैं, कल दिन में लैंडस्लाइड में हमारा 5 लोग मरा है। जैसे हमारा सपाईडंग एरिया में एक लेडी, एक 2 बच्चा, कामाख्या में एक आदमी और यहाँ कटालपारा में एक आदमी, टोटल 5 आदमी का कैजुअलिटी हुआ है। तो उस हिसाब से तो लैंडस्लाइड का तो बहुत खतरा है। हमारा SDRF NDRF पूरा तैयारी में है, तो जैसे भी हो उसको रुकाने के लिए लोगों को चेतावनी दिया गया था, ये इस एरिया में नहीं जाना है, ऐसा काम नहीं करना है, जिस एरिया में फुट हिल्स में है उसको यहाँ से निकल के आना है। ऐसा अलर्टनेस तो हम लोग दे दिया हूँ। और सबसे बड़ा बात आप जो बोला है, ब्रह्मपुत्र का पानी भी अभी बाहर जाएगा क्योंकि बाहर भी पानी हो रहा है। तब हमारा औरौलू में पंपिंग करने का हम लोग सिस्टम है, पंप करके हम ब्रह्मपुत्र में दे देता है। ऐसा 10 पंप वहाँ लगा हुआ है, ऐसे पंपिंग करके दे देना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था तो है, जब ब्रह्मपुत्र का पानी का स्तर बढ़ेगा तब प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, लेकिन उसका व्यवस्था भी हम लोग कर